Hi guys, welcome back to the YouTube channel of Ines Fragrance. So let's start with the set number 43 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own and then proceed with the video solutions. So this particular set I've taken from Cat 21 slot 1 paper and the set says, Ganga, Kaveri and Narmada are three women who buy four raw materials, mango, apple, banana and milk and sell five finished products, mango smoothie, apple smoothie, banana smoothie, mixed fruit smoothie and fruit salad. Table 1 gives information about the raw material required to produce the five finished products. One unit of a finished product requires 1 unit of each of the raw material mentioned in the second column of the table. Table 1 is there जहाँ पे finished product and raw material required for making that finished product is mentioned. 1 unit of a milk, mango, apple and banana costs rupee 532 and 1 respectively. Each unit of a finished product is sold for a profit equal to 2 times the number of raw material used to make the product. For example, apple smoothie is made with 2 raw material and uh, will be sold for a profit of rupees 4 per unit. Leftover raw materials are sold during the last business hours for the day for a loss of 1 rupee per unit. The amount in rupees received from sales revenue for each woman in each of the 4 business hours of the day is given in table 2. The following additional facts are known. No one except possibly Ganga sold any mango smoothie. Each one sold either 0 or 1 unit of any single product in any hour. One woman had exactly 1 unit each of two different raw material as leftovers. No one had any banana leftovers. एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं. What best can be concluded about the number of unit of fruit salad sold in the first hour? Which of the following is necessarily true? What best can be concluded about the number of unit of milk the three women had in the beginning? If it is known that three leftover units of mangoes were sold during the last business hours of the day, how many apple smoothie were sold during the day? ठीक है. सो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन का सेट दिख रहा है जहाँ पे अपने को क्या करना होगा. पहले जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट यूज पहले निकाल सकते हैं एंड देन प्रॉफिट बुक करके उनका एक अमाउंट मिल जाएगा. सिंस आई नो कि हर घंटे के अंदर कितना अमाउंट का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो यूजिंग दैट MRP ऑफ एनी ऑफ द स्मूथी एनी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट आई विल बी एबल टू ब्रेक डाउन द रेवेन्यू इन एनी आवर्स. क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि मैंगो मिल्क एप्पल मिल्क इनका कुछ ना कुछ 11 12 15 रुपये बन रहा होगा और जिसका सम ये 23 और 19 दे रखा है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट जिसमें कि पहला अपने क्या है, अपने को पता है इनकम वो लिख लेते हैं, प्राइस लिख लेते हैं. जैसे अपने को क्या पता है, मिल्क का कितना दिया हुआ है 5 रुपीज़. ठीक है. मैंगो का है 3 रुपीज़. एप्पल का है 2 रुपीज़ एंड बनाना इज 1 रुपया. ठीक. उसकी वजह से इनका कितना हो जाएगा, मैंगो स्मूदी यानी कि 5 और मिल्क 5 और 3 8. ठीक है. 8 रुपीज़ का मैंगो स्मूदी होगा जिसको कि प्रॉफिट बुक करके कितने का बेच सकते हैं. प्रॉफिट इस पर अपन 4 रुपये का लगा सकते हैं. बिकॉज यही बोला था कि जैसे यहाँ पे देखो, अगर आप प्रॉफिट के कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन दी, ईच यूनिट ऑफ अ फिनिश प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट इक्वल टू द 2 टाइम्स द नंबर ऑफ रॉ मटेरियल यूज. तो यहाँ पे एक मैंगो का एक मिल्क का यूज़ हो रहा है तो उसका डबल मार देंगे. तो दिस विल बी ऑफ 12 रुपीज़. ठीक है. एप्पल स्मूदी का कितना हो जाएगा, एप्पल प्लस मिल्क कितना हो जाएगा, एप्पल प्लस मिल्क वुड बी 5 और 2 7 यानी कि 7 + 4 ये हो जाएगा 11 रुपीज़ का. ठीक है. बनाना स्मूदी कितना हो जाएगा, मिल्क प्लस ये यानी कि 6 रुपये. ठीक है. 6 + 4 ये हो जाएगा तुम्हारा 10 रुपीज़ का. मिक्स फ्रूट स्मूदी है, ये चारों का कॉम्बिनेशन यानी कि 5 3 7 5 3 8 2 10 और 1 11 यानी कि 11 + 8 क्योंकि चारों कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं तो 4 2 जा 8 हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 19 रुपीज़ का. ठीक है. मैं फ्रूट सैलेड में आपका मिल्क छोड़ के ये यानी कि 3 2 5 1 6 यानी कि 6 प्लस यहाँ पे इन तीनों का आइटम का प्रॉफिट 6 यानी कि ये 12 का हो जाएगा. ठीक. इसके अलावा लिखा हुआ है कि भाई लेफ्ट ओवर रॉ मटेरियल आर सोल्ड ड्यूरिंग द लास्ट बिजनेस आवर्स, 1 रुपये यूनिट के लॉस में. जो बचेंगे वो लास्ट आवर्स में बिकेंगे ये इस वाले आवर में. ठीक है. और 1 रुपये के नुकसान पे बेचेंगे. ठीक. फिर आगे लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नोन. अब यहाँ पे ध्यान देना ना, पहले वाले घंटे में 23 बना. 23 बनने का कारण क्या होगा, 12 + 11. ठीक. 12 + 11. अब ये 12 कौन सा है, ये शायद मैंगो स्मूदी वाला 12 है या फ्रूट सैलेड वाला 12 है. आई एम नॉट श्योर किसका 12 है बट ये इन दोनों में से एक है. ठीक. इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या दिया, नो वन सोल्ड एक्सेप्ट पॉसिबली गंगा सोल्ड एनी मैंगो स्मूदी खाली गंगा है जो सेल कर सकती है पॉसिबली, बाकी दोनों नहीं कर रहे ये पता है.
बट ये जो 12 है ये शायद फ्रूट सैलेड से भी आ सकता है, ये शायद मैंगो स्मूदी से भी आ सकता है, बट बाकी किसी का 12 आएगा तो वो फिक्स फ्रूट सैलेड से ही आएगा, उनका मैंगो स्मूदी से नहीं आ सकता, ये तो अपने को पक्का पता है, ठीक है। ये 19 कहाँ से आया होगा, ये यहीं से आया होगा, ये 31 कहाँ से आया होगा, 19 प्लस 12 से आया होगा। अब इसका ये 12 कहाँ से, ये वाला 12 है, ठीक है, फ्रूट सैलेड वाला, बिकॉज ये मैंगो स्मूदी सेल नहीं कर सकता है, ठीक। 21 कैसे बनेगा, 10 प्लस 11, ये तो यूनिक नंबर है तो उसमें दिक्कत नहीं है। ये भी बनेगा 12 प्लस 10 से, ठीक है। अगेन ये 12 कैसा है, ये वाला है फ्रूट सैलेड वाला, ये 12 मैंगो वाला नहीं है, ठीक है। ये 21 कैसा है, 10 प्लस 11 से, ठीक। ये आवर 3 में ये क्या है, 19 प्लस 10, ठीक। आसान सेट एकदम, ये 19 प्लस 11 हो जाएगा, ठीक है। ये 23 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 12 प्लस 11, ठीक। अब लास्ट वाले आवर्स में 30 है जिसको कि ब्रेक करना है विथ 2 ये वाले में से प्लस एक लॉस वाला आइटम का, ठीक है। उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या इन्फॉर्मेशन दी है, नो वन एक्सेप्ट पॉसिबली गंगा सोल्ड एनी मैंगो स्मूदी, ये तो यूज़ कर लिया आपने, मतलब ये सब मैंगो स्मूदी नहीं है, मैंगो स्मूदी पॉसिबली यहीं पे आ सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, ईच वुमेन सोल्ड ईदर जीरो, और ये तो हमने बात कर ली थी जब पढ़ रहे थे, तो हमने देख लिया था कि 1 यूनिट ही बिक रहा है। ईच वुमन हैड एक्जैक्टली 1 यूनिट ऑफ 2 डिफरेंट रॉ मटेरियल एज लेफ्ट ओवर। अच्छा, सबके पास एक एक यूनिट का लेफ्ट ओवर था, वो सारे में से हो सकता है, मतलब एक मैंगो, एक बनाना, एक एप्पल और एक मिल्क। नो वन हैड बनाना लेफ्ट ओवर, किसी के पास बनाना का लेफ्ट ओवर नहीं था, ठीक है। अगर बनाना नहीं था तो बचे हुए 3 में से किसी का 2 का कॉम्बिनेशन होगा, तो वो किसका हो सकता है, मिल्क और मैंगो का हो सकता है, ठीक। उस केस में उसका क्या प्राइस रहा होगा, मिल्क और मैंगो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 में एक एक रुपये इसका डिडक्शन कर देंगे लॉस की वजह से, तो ये हो जाएगा 6, ठीक। मिल्क और एप्पल हो सकता है, ठीक, वो कितना हो जाएगा, मिल्क और एप्पल कितना है, 5 और 2 7, -2 कर लेंगे यानी कि 5 होना चाहिए था। या मैंगो और एप्पल हो सकता है, यानी कि मैंगो और एप्पल हो सकता है, ये कितना हो गया, 3 और 2 5, इसमें से भी 2 रुपये डिडक्ट कर देंगे यानी कि 3, यानी कि जो लेफ्ट ओवर है उनका प्राइस ये हो सकता है। अब लास्ट आवर में क्या हुआ होगा, ये जो 30 का कॉम्बिनेशन है वो कैसे रहा होगा, कोई एक यहाँ से आया होगा और बाकी जो बचे हुए 2 हैं वो यहाँ से आए होंगे, या 2 से ज़्यादा यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। चलो लेट्स थिंक ऑफ दिस थिंग कि भाई ये कहाँ से बन सकता है, ठीक है। जैसे 20 की बात करें, 20 का 3 के साथ बन सकता है कि अगर 3 आ जाएगा तो 27 बनाना पड़ेगा। 27 कहीं से बना सकता हूँ, नहीं, 27 में कहीं से नहीं बना पाऊंगा। 5, अगर मैं 5 यहाँ पे रखता हूँ यानी कि 25 बना सकता हूँ क्या, 12 12 24 बन सकता है, 12 11 नहीं, 25 भी नहीं बन सकता। 6 जैसे ही से डिडक्ट करूँगा तो यहाँ पे 12 और 12 दिख रहा है, तो यहाँ पे एक तो मिल रहा है, 6 प्लस 12 प्लस 12, ठीक। अच्छा, 27 पे दिमाग लगाते हैं, 27 पे कितना है, 27 पे 3 डिडक्ट कर सकते हैं, पॉसिबल है, 3 12 और 12, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि दोनों अलग अलग 12 होना पड़ेगा, ठीक है। और हमें क्या पता था कि कोई भी वेंडर या कोई भी जो वुमेन है वो एक ही टाइप का प्रोडक्ट बेच रही होती है, मतलब वो 12 और 12 में प्रॉब्लम क्या है, दोनों उसका फ्रूट सैलेड आ जाएगा, क्योंकि ये मैंगो स्मूदी नहीं बेचती है, ठीक है। अगर ये गंगा का होता तो वी वुड हैव थॉट कि भाई हाँ 12 और 12 लिख सकते हैं, बट यहाँ पे देखो 12 और 12 नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे 3 वाला केस तो गया, 5 वाला केस कर सकते हैं क्या, 5 वाले के लिए 12 आ जाएगा, तो यानी कि 5 12 और 10 विथ साउंड्स की हो सकता है, ठीक। 6 से कर सकते हैं क्या, 6 अगर करेंगे तो ये भी पॉसिबल है, 6 10 और 11, ठीक। ये 2 केसेस इसके दिख रहे हैं। 22 के लिए 5 माइनस करेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, 17, नहीं बन सकता। 6 माइनस कर देंगे 16, नहीं बन सकता। 3 माइनस करेंगे तो 19, ये बन सकता है, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पे हमने क्या करा, बहुत ही मतलब आसानी से ये नंबर्स को अपने क्रंच करके बस लिख दिया। एकदम इजी से मॉडरेट वाला सेट है, मतलब मॉडरेट पकड़ लो, बस इतना था, बिकॉज ऐसे सेट्स कई बार हमने प्रीवियसली भी कर रखे हैं, तो इसलिए मेरे को पता है कि हाँ ये ऐसे सेट्स के अंदर नंबर को बस सेट करना होता है, ठीक है। लेट्स जंप टू दी क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, उसके हिसाब से आंसर्स मार्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला हुआ है, व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फ्रूट सैलेड सोल्ड इन द फर्स्ट आवर। फ्रूट सैलेड यानी कि कहाँ पे बेचा गया होगा, एक तो यहाँ पे बेचा जा रहा है पहले आवर में, यहाँ पे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बिकॉज गंगा के बारे में पता है, वो ये 12 रुपये का इसने कुछ बेचा, तो 12 रुपये का वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस जगह पे ये 12 इसी पे होगा, फ्रूट सैलेड पे होगा, तो ईदर 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी शुड बी दी करेक्ट आंसर, ईदर 1 और 2।
ठीक है, 1 और 2 क्यों? क्योंकि ये तो होना ही होना है, ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता, यानी ये जो 12 है ये शायद फ्रूट सैलेड का हो या शायद मैंगो स्मूदी का हो, तो इसलिए मैंने 1 और 2 लिखना, आंसर ये होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू? कौन सा ऐसा है जो नेसेसरली ट्रू है? नर्मदा सोल्ड 1 यूनिट ऑफ लेफ्ट ओवर मिल्क। नर्मदा 1 यूनिट ऑफ लेफ्ट ओवर मिल्क, यानी कि इसने 3 रुपये वाला आइटम बेचा, 3 रुपये में मिल्क नहीं आता है, ठीक है, तो दिस इज फॉल्स। अच्छा, कावेरी सोल्ड 1 यूनिट ऑफ लेफ्ट ओवर मैंगोज कावेरी में क्या है? 6 और 5 वाला, 6 और 5 वाला, 6 वाले में तो है यार, 5 वाले में आई एम नॉट श्योर, क्योंकि पूछा हुआ है नेसेसरली ट्रू, तो यार ये तो नेसेसरली ट्रू नहीं, ये मे बी ट्रू है। गंगा डिड नॉट सेल एनी लेफ्ट ओवर एप्पल्स, एप्पल वाला नहीं है, यानी कि हाँ देखो ये वाला है, इसने 6 वाला करा और 6 वाले में एप्पल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नेसेसरली ट्रू यही है। गंगा डिड नॉट सेल एनी लेफ्ट ओवर मैंगोज, मैंगो वाला इसने तो यार देखो करा है, ठीक है। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आराम से आप निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ मिल्क द 3 वुमेन हैड इन द बिगिनिंग? ठीक है, मिल्क कहाँ पे, मतलब कि तीनों के पास कितना रहा होगा, ठीक है। मिल्क कहाँ पे यूज़ नहीं होता है? यहाँ पे नहीं यूज़ होता है, ठीक है, बाकी जगह यूज़ हो रहा है, यानी कि 12 को छोड़ के पहले तो हम वो वाले नंबर्स निकाल ले जहाँ पे फॉर श्योर मिल्क को नहीं होना, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 तक लेके चलते हैं, ठीक है। हाँ ये भी तो हो जाएगा 16, बिकॉज ये भी है, ये और ये दोनों में 16 और 17 इम्पैक्ट, ठीक है। फिर से काउंट करा देता हूँ, देखो मैंने ये लिया 1 2 3 4 5 6, और इन दोनों में से एक तो आना ही आना है, बिकॉज एक में मैंगो स्मूदी आया होगा और एक में फ्रूट सैलेड आया होगा, दोनों सेम प्रोडक्ट तो बेच नहीं सकते, तो यहाँ पे एक तो आया ही होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 7 और 8 कुछ भी हो सकता था, ठीक है, 7 और 8, बिकॉज इसके लिए आई एम नॉट श्योर कि ये मैंगो स्मूदी है या फ्रूट सैलेड है, तो इसके लिए 7 और 8 होना चाहिए था फॉर गंगा, ठीक है। एक ही इंडिविजुअल का काउंट कर लेते तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 यहाँ पे हो भी सकता नहीं भी हो सकता। कावेरी के लिए 1 2, क्योंकि यहाँ पे मैंगो स्मूदी नहीं होने वाला तो इसको काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, क्योंकि इन दोनों ही केसेस में मिल्क आना ही आना है, तो 5 एंड यहाँ पे 6, बिकॉज 10 वाला आएगा ही आएगा, एंड यहाँ पे आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, बिकॉज ये 12 तो ऐसा है जो कि फ्रूट सैलेड ही होने वाला है, तो यहाँ पे भी 6 और 7 होना पड़ेगा, ठीक, मतलब 6 तो फिक्स है, 7 भी जा सकता है। सिमिलरली नर्मदा पे चेक करते हैं, नर्मदा का कितना है, 1 2 3 4 5 नहीं 5, बिकॉज ये भी नहीं है, यहाँ पे मिल्क नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2, ये भी तुम्हारा फ्रूट सैलेड है ना, इसको भी हाईलाइट कर लेते सो दैट कंफ्यूजन हो, 1 2 3 4 5, ठीक। अब बात करें तो कितना हो गया, 5 6 11 7 18, बेयर मिनिमम 18 तो होना चाहिए, 18 के अलावा ये भी ऐड हो सकता है, तो या ये ऐड हो सकता है, तो 18 हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, मैक्स टू मैक्स 20 हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए शुड बी दी करेक्ट आंसर, ईदर 18 और 19 और 20, ठीक है। अगेन थोड़ा ये वाला क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, बट हाँ यहाँ से अगर हाईलाइट करते हुए चलो तो आराम से शांति दिमाग से निकाल सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ इट इज नोन दैट 3 लेफ्ट ओवर यूनिट ऑफ मैंगोज वर सोल्ड ड्यूरिंग द लास्ट बिजनेस आवर, ठीक है, ऐसा देखा गया कि 3 लेफ्ट ओवर यूनिट बेचे गए मैंगो के, मैंगो वाला मतलब या तो वो 6 वाला रहा होगा या तो वो 3 वाला रहा होगा, ठीक है, 3 वाला यानी कि एक तो यहीं पे आना ही आना है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे आना ही आना है, तीसरा ये वाला केस कंसिडर करना पड़ेगा अपने को, तभी वो होगा 1 2 और 3 फॉर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। अब आगे बोला, इफ इट इज नोन दैट 3 लेफ्ट ओवर यूनिट ऑफ मैंगोज वर सोल्ड ड्यूरिंग द लास्ट बिजनेस आवर ऑफ द डे, हाउ मेनी एप्पल स्मूदीज वर सोल्ड ड्यूरिंग द डे? एप्पल स्मूदी मतलब कितने वाला आइटम, एप्पल स्मूदी मतलब 11 वाला आइटम, 11 वाले कितने बेचे गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगेन क्लियर कट, आराम से दिख रहा था, फिर से काउंट करा देता देखो, एक मतलब मेरे को 11 वाला पकड़ना था, यहाँ तो 12 का कंफ्यूजन भी नहीं है, 11 वाले यूनिक है, 1 2, ठीक है, 3, यहाँ पे ये केस लिया तो 4, इसका 5, ये 6, तो आंसर क्या होना चाहिए 6, ठीक है। मॉडरेट सेट मतलब इजी से मॉडरेट वाला सेट, अगर किसी ने नंबर क्रंचिंग कर रखी है और पीवाईक्यूज लगा के गया होगा तो कैट वाले दिन उससे आराम से ये सेट निकला होगा, ठीक है। चलो कीप प्रैक्टिसिंग।